I'm also an option trader. Option selling, mostly option selling करता हूँ मैं. But recently I've tested some option buying strategies as well, and mostly in a few days time we should be trading option buying as well. अभी तक तो मैं option selling ही कर रहा था. But because of a lot of traders are into option buying in our community, so I also tended to backtest some strategies, and maybe we can deploy some. Okay. Having said that, let us now go ahead. We will be looking at what exactly are we going to do. I want you to be very interactive. This is going to be a very small session, not a very lengthy one, because this is not going to be a practical session. ये थोड़ा theory class होगी, the small orientation. Okay. So just basically in this particular community, okay, in this particular algo, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है. In this particular algo trading, what do we follow? ठीक है, what do we basically follow? Okay. HK, yes, you can take notes. I would suggest कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, which are going to be very very important to you from a money management point of view. ठीक है. Generally money management end में देखते हैं. We are going to look at money management at the start before we get started with the algos. Okay. So algo trading in this particular case, what do I want you to focus on is trading as a business and not just a side income. Okay, that is something that I want you to focus on. Okay, trading as a business and not as a side income. Okay, so ये बहुत important चीज है. And business, in order to succeed, it requires investment. ठीक है, बहुत कम businesses होते हैं. Very small number of businesses are there which can be started without any investment. Okay, so it can be is investment of money, okay, or time, and basically efforts. Okay, a lot of people general sense में what they think is algo trading जो हम कर रहे हैं, basically trading in general. Okay, not just algo, trading in general is considered as a side income. Am I correct in saying that? Most of us would be using trading as a side income along with our jobs or whatever main business is there. Just let me know in the chat box if you agree to certain extent. अगर आप agree कर रहे हैं to this कि generally हम side income की तरफ ज़्यादा देखते हैं instead of trading being our primary or maybe a decent source of income. Okay, so the problem here lies is that whenever you talk about side income, okay, this investment is generally low. Whenever we talk about side income, हमको side income में ज़्यादा investment नहीं डालना होता है, especially in trading. Side income as in if you are, there is a difference between side income and passive income. Okay, passive income के basically passive income talks about long-term investments, stocks and portfolio. Okay, that is passive income. So you get passive income from dividends and capital gains on a long-term LTCG and everything, right? You get passive income from this. Okay, but in terms of trading, it is not passive income. Okay, you want active churning of your capital, but because it is not our primary source of income, generally हम investment इसमें कम करते हैं, and that is the reason why generally people start with 15 to 20,000 rupees and go ahead with option buying. If you are agreeing with me, just let me know. That is the primary reason for starting with option buying. There is no strategy, nothing, no backtesting around it. Why not option selling, or why not stocks, or why not anything else? What people think, I can invest only 15-20,000, and if I am right on something, I can make 100%, 200% easily.
इन द जनरल सेंस, ओके, नॉट एवरी टाइम, बट काफी लोगों का रीजन ये होता है बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज लोअर, ओके. एंड even if you are starting a business, there are a lot of businesses जहाँ पे without any investment also you can start. But यहाँ पे what are we trying to do? If you are looking at it as a business, ठीक है, not as a side hustle, okay. First and foremost thing, you let me know. If I am to, let's say, मुझे एक shop start करना, I want to start a particular shop in my locality, okay. What is the first thing I'll do in terms of I mean, first process का first part क्या होगा? If I want to start a particular start a particular shop, what will I do? क्या हो सकता है? Raghu ji is saying market research. Yogesh ji is rightly saying it, scan the locality to check the market. ठीक है? So that is called research. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, ओके. सो अगर इसी चीज को आप साइड बाय साइड बिजनेस को आप यहाँ पे समझ लो एज अ ट्रेडिंग जो है, इन ट्रेडिंग दिस रिसर्च, व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस रिसर्च ट्रेडिंग टर्म्स में व्हाट इज इट कॉल्ड? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है. बट दिस रिसर्च इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, आप इस चीज को क्या बोलते हो? वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है, यू कैन कॉल इट बैक टेस्टिंग. बैक टेस्टिंग आप बोल सकते हो, या फिर रघु जी हैज राइटली सेड एनालिसिस. ठीक है. सो नाउ इफ यू आर डूइंग इट एज अ बिजनेस, अब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म का सोच लो, ओके, वन मोर थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस इज दैट आपको इसको रिसर्च करना है. ठीक है, आपको इसको रिसर्च करना है, बैक टेस्ट करना है. ठीक है, विदाउट अ टेस्टेड थिंग, ठीक है, यू कैन नॉट गो अहेड. ठीक है, सो इवन इफ यू आर, लेट्स से आप इस क्लास में आए हैं, यू वांट टू गेट इनटू एल्गो ट्रेडिंग, माय सजेशन इज सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी पे फोकस करें. ठीक है, सो इफ यू हैव अ स्ट्रैटेजी, इफ यू हैव बीन ट्रेडिंग दैट स्ट्रैटेजी फॉर अ फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स, ठीक है, गेट दैट स्ट्रैटेजी टेस्टेड फर्स्ट. तो सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे. किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? यू कैन गेट माई हेल्प ऑल्सो, ओके. आई कैन हेल्प यू आउट विथ some websites or maybe using Python also if you can test it out. Pine script पे, ट्रेनिंग व्यू पे टेस्ट हो सकता है. ठीक है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू टेस्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. जस्ट इफ यू आर फॉलोइंग, जस्ट एक क्लियर करके लिख दो चैट बॉक्स में, इफ यू आर फॉलोइंग विद दिस, दैट वी इन दिस पर्टिकुलर community also, everything is going to be tested. ठीक है, you can rest assured कि we'll be adding you by tomorrow morning or tomorrow afternoon. Mostly we'll be adding you into 2 to 3 different groups, okay. And this is a chat room, developer group and everything. I'll be explaining you in due course of time. तो इसके अंदर क्या होता है कि basically if anyone is posting their P&Ls or whatever, ठीक है, the first thing, ठीक है, that we will ask is if you have a tested strategy. ठीक है, a lot of people what they do is in these WhatsApp groups, buy this, sell this. हमारे ग्रुप में वैसा नहीं होता है. You will not get messages saying that buy this stock at this price, sell this stock at this price, of whatever, this is the stop loss, this is the target. जो काफी सारे चैट रूम्स में चलता है, टेलीग्राम पे चलता है, टेलीग्राम मैसेजेस में आता है बाय दिस स्टॉक या फिर bought this stock at this price and everything. That is not going to happen. Okay, so if anyone is trading, okay, and if anyone is posting their P&Ls, okay, they will also have to be telling you the strategy behind it. Okay, now strategy का ये मतलब नहीं होता है, again strategy का ये मतलब नहीं होता है कि let's say I bought Adani, let's say I bought Adani today. ठीक है, why did I buy Adani? Because it broke day high या previous day high. Previous day high break किया, MACD is also strong, and then RSI is also strong.
market is also strong, ठीक है, that is not called a back tested strategy. आपको अगर किसी ने ये भी पोस्ट किया, we will be asking that person, ठीक है, do you have a back tested report saying that whenever Adani breaks this previous day high or low, whatever, it makes money historically? Can this be a only one off thing? ठीक है, that is called back testing. अगर उस बंदे ने PNL नहीं, back testing दे दिया that yes, in the last 2 years, whenever Adani breaks previous day's high, it goes up by so and so amount, and if we keep a so and so percentage stop loss or fixed point of stop loss or target, we make this amount of money. That is a tested strategy on Adani. That becomes a tested strategy. Are we clear on that part? सही लग रहा है? Because the important part is कि हमको अपना PNL या जो भी इनकम है वो शो ऑफ नहीं करना है. We have to show off the strategy. Okay, we have to show off what the strategy is made of, if it is bound to make money, and why am I focusing on long term things? ठीक है, why am I focusing on trading as a business? ठीक है, because अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर those who are business people, I mean those who are running their own businesses or in their family, please let us know in the chat box. एक क्वेश्चन आपसे पूछना है. Those who are running their businesses और आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, आप भले ही ना कर रहे हो, आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, तो प्लीज लेट अस नो इन द चैट. तो इफ यू वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू आंसर दिस. ओके, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं. ओके, yes, Shivani ji said yes. Okay, so there is a fundamental thing about a business. ठीक है, एक fundamental thing जो होती है जब भी आप बिजनेस इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है, there is a fundamental thing about a business, ठीक है, which is called, it's a going concern. ठीक है, fundamental thing about a business is it is called as a going concern. Am I correct? अगर आपने ये सुना होगा whenever you incorporated the business, या कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा, business is a going concern. क्या मीनिंग होता है इसका exactly? Business is a going concern. This is a common terminology used whenever you incorporate any kind of company or business, whatever, है ना? इसका मीनिंग क्या होता है basically? Your business should not be dependent on you. It is जब तक वो कंपनी बंद नहीं होते, unless you file for bankruptcy, that business will not die. It is ongoing, right? So that is why the algo trading becomes important, because your trading should not be dependent on you. Okay, your trading should not be dependent on you. और वो dependent आप पे ना रहे, ठीक है, trading आप पे dependent ना रहे, इसीलिए हम उसको टेस्ट करते हैं कि टुमारो इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अ ट्रेड, ठीक है, आप मार्केट खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, बट इफ यू हैव अ टेस्टेड सिस्टम, इट विल वर्क फॉर यू, ओके, विदाउट यू बीइंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, सो बेसिकली गोइंग कंसर्न का अगर हम वेरी लेमैन पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, सो आपको क्या करना है, इसको टेस्ट आउट करना है. तो बैक टेस्टिंग के लिए वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन एनी विच वे पॉसिबल. वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू डू, टेस्ट इट आउट फर्स्ट. ठीक है, उसको आपको टेस्ट आउट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज लेट्स से रिसर्च. ठीक है, आपको रिसर्च करना है, उससे पहले आपको जाना नहीं है. इन दिस रिसर्च वी विल बी हेल्पिंग यू आउट. ठीक है, second point in this particular thing, in this community, what you can expect is think long term. Sorry, pardon my this thing. Think long term. Okay, so why do we want to think long term? Because let's say if I am testing something, ठीक है, अगर मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूं, there can be times when the strategy does not make money. ठीक है, अगर आप अभी तक उस तरीके से काम करते आ रहे हो, let me know, those who are trading for a longer time, how many consecutive losses have you taken in your strategy?
इन द विद द सेम स्ट्रेटेजी कितने कंसेक्यूटिव लॉसेस आपने लिए हुए हैं एवरी डे, सेम स्ट्रेटेजी, अगर आप सेम चीज कर चुके हो, लेट मी नो दोज हु हैव फेस दैट इन द पास्ट, कि आपने मैक्सिमम कितने लॉसेस लिए हैं कंसेक्यूटिवली, ठीक है, नॉट अ सिंगल बिगेस्ट लॉस, कंसेक्यूटिवली कितने लॉसेस लिए हैं। तुषार जी हैज टेकन 2 months ऑफ ड्रॉ डाउन, ठीक है। शिवानी जी यस, नंबर ऑफ ट्रेड्स बेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है, 5 से 6, ठीक है, तुषार जी 5 से 6, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, आपको ये आपका एक माइंडसेट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक माइंडसेट बनाना है इफ यू आर इन इट, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस आप 1-2 साल के लिए नहीं करते, राइट, यू डू इट फॉर द लॉन्ग टर्म। बट जब लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात आती है तो एवरीवन थिंक्स अबाउट स्टॉक्स, राइट, स्टॉक पोर्टफोलियो है, पोजिशनल, पोजिशनल तो ठीक है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड, ठीक है। बट वेन एवर यू थिंक अबाउट ट्रेडिंग, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एज इन सिर्फ एंट्री एग्जिट शॉर्ट टर्म नहीं है, हमको अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको लॉन्ग टर्म बनाना। इवन इफ यू एग्जिट इन द शॉर्ट टर्म, यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम विद योर स्ट्रैटेजी। क्या कह रहा हूं मैं एग्जैक्टली? योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, योर स्ट्रैटेजी, ओके, should be traded for at least, okay, should be traded for at least 6 months। ये भी मैं शॉर्ट टर्म ही बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली यू वुड आस्क एनी प्रॉप ट्रेडर या एनीवन, ठीक है, दे वुड से आपकी अगर स्ट्रैटेजी आप कर रहे हो, ठीक है, यू शुड stick to the strategy at least for a year। So I worked with prop desks, ठीक है, वहां पर क्या होता है, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। So if you are working with a prop desk, first before you start trading, आपको अपनी strategies को submit करना पड़ता है, okay? So whatever you are going to do, you have to explain your strategies, explain if you are going to do it automatically or manually। Mostly तो automatic ही होता है, manually तो कोई करने नहीं देता है। So how would your algo work, okay? So आपको अपनी strategy explain करनी है, you have to show your results, ठीक है, back testing results हो, live results हो, you have to show the results of that strategy and how would you automate that। Then people will tick that, ठीक है, कि चलो ये आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। Then let's say if you have a strategy, then you will start trading। But अगर मैं बीच में से ही जाता हूँ यार, 2-4 ट्रेड मेरे गलत चले गए, and then if I go back to the team and say that I am changing the strategy, they'll think ill of me। वो कहेंगे कि अब 4 दिन में स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, what has gone wrong, right? आपने 4 दिन लॉस ले लिया, तो इन योर स्ट्रैटेजी डिड यू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स यू कैन लूज, व्हाई आर यू चेंजिंग द स्ट्रैटेजी एवरी, तो स्ट्रैटेजी चेंज करने नहीं देते हैं। सो व्हाट पीपल से इज, इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप एंटर ही मत करो। जब अगर आपने एक बार स्ट्रैटेजी लगा ली, उसके बाद एटलीस्ट 6-7 महीने तो आपको उसको देखना नहीं। If you don't have the confidence that you can run the strategy without changing it for 6 months, do not enter into it। जब तक वो confidence नहीं आता है, do not enter। भले कितने भी आपके आसपास के लोग, how much ever profits they must be making, if you don't have the confidence that you can withstand the whipsaws of the strategy for 6 months at least, do not enter। Are we clear on this? ठीक है, कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी लॉसेस हो जाए, मैं 6 महीने तक इस स्ट्रैटेजी को चलाने वाला हूं। इफ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, कीप ऑन रिसर्चिंग। अगेन दिस इज अ लूप, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ लूप, ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस आने वाली स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है, वी हैव ट्राइड टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज फ्रॉम आवर एंड, बट उसमें भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि नहीं, इसमें भी आई कैन लूज, आप अगर 3-4 लॉसेस के बाद, 3-4 लॉस या 5-6 लॉसेस के बाद आप सोच में पड़ जाते हो कि यार कुछ और करते, देन दिस इज नॉट फॉर यू। आपको पहले उस चीज पे काम करना पड़ेगा, ओके। सो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म का गेम खेलते हैं। नाउ बेसिकली वेन एवर वी बैक टेस्ट अ स्ट्रैटेजी, फर्स्ट थिंग दैट वी लुक एट इज मैक्स ड्रॉडाउन, ठीक है।
अब जिन 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 लोगों को नहीं पता है, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज मैक्स ड्रॉडाउन। अगर जिनको नहीं पता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन द मास्टर क्लासेस। इफ आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू, आपने अगर सवाल पूछा होगा, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। ठीक है, योगेश जी डज नॉट नो, एनीवन एल्स जिनको नहीं आइडिया, प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द चैट सो दैट आपके क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं इन अ टाइमली मैनर। ओके, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको कैसे देखना है, क्या होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज, लेट अस से, मैं आपको इजी वे में बता रहा हूं। ठीक है, लेट अस से दिस इज योर पोर्टफोलियो। ठीक है, दिस इज योर पोर्टफोलियो। आपने पहले ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट में चला गया। ओके, देन आपका थोड़ा सा लॉस हुआ, देन आपका ऊपर गया, नीचे गया, इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है। ठीक है, लेट्स से यू आर एट दिस लेवल ना। ओके, आपने स्टार्ट किया था 1000 रुपए से, यू आर एट 10,000 नाउ। ठीक है, आपके 100 ट्रेड हो चुके हैं इस स्ट्रैटेजी में, आपके पोर्टफोलियो के। यू आर एट दिस दिस पॉइंट नाउ, आपका जो इक्विटी कर्व है दैट इज 10,000। ठीक है, अभी करंट वैल्यू आपके पोर्टफोलियो का 10,000 से। ओके, नाउ लेट अस से यू मेक अ लॉस। ठीक है, आपको 1,000 रुपए का लॉस हुआ, आपका हो जाएगा 9,000। ठीक है, देन आप वापस एक लॉस करते हो। ठीक है, आपका आ जाता है 8,000 पे। ठीक है, एट ईच गिवन पॉइंट, एट एवरी गिवन पॉइंट आपको एक चीज कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज योर ड्रॉडाउन। उसको बोलते हैं ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन होता क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम दैट योर पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन, ठीक है, कंपेयर टू इट्स पीक। ठीक है, एट एवरी गिवन पॉइंट। ठीक है, जब आप यहां पर थे, ठीक है, और जब लेटर से आप यहां पर हैं, ओके, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, मतलब लेटर से दिस इज, आपने स्टार्ट किया था 1 मई को। ठीक है, अभी चल रहा है 15 मई। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक व्हाट इज द पीक, इस पॉइंट तक जो भी पीक माइनस द करंट वैल्यू कितना है। ठीक है, अभी इस पॉइंट तक व्हाट इज द पीक, ठीक है, इस पॉइंट तक व्हाट इज द पीक, लेट्स से 10,000 आपका पीक है। 15 मई तक आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम जो ऊपर गया है दैट इज 10,000, है ना। अब ये पीक माइनस करंट वैल्यू, ठीक है, दैट इज योर ड्रॉडाउन। पीक माइनस करंट वैल्यू इज योर ड्रॉडाउन। तो मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आपने 1,000 रुपए से स्टार्ट किया, ठीक है, आपका 1,000 रुपए से 1,200 रुपए हो गया, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका इस वे में ड्रॉडाउन कितना हुआ, बिकॉज पीक माइनस करंट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज हमको नहीं चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर गया है तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका ड्रॉडाउन आप 0 पकड़ लो। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा, इट बी 0, विच इज पीक माइनस करंट वैल्यू। अब इस पॉइंट पे व्हाट इज द पीक, 1,200। ठीक है, करंट वैल्यू भी 1,200 है। ठीक है, तो ड्रॉडाउन इज 0। नेक्स्ट अगेन यू गो अप, 1,300 हो गया, अगेन प्रॉफिट, ड्रॉडाउन इज 0। नाउ यू मेक अ लॉस। ठीक है, आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस हो गया, नाउ यू आर एट 1,200। ठीक है, अब एट दिस पॉइंट व्हाट शुड बी योर ड्रॉडाउन, क्या होगा यहाँ पे ड्रॉडाउन, इस टाइम पे व्हाट इज द ड्रॉडाउन, पीक माइनस करंट वैल्यू। इस टाइम तक आपका जो पीक था, व्हाट इज द पीक, 1,300। अभी क्या चल रहा है, 1,200, तो योर ड्रॉडाउन इज 100। ठीक है, नेक्स्ट आप, और एक लॉस होता है, ये हो जाता है 1,100। टिल देन एट दिस पॉइंट व्हाट इज योर ड्रॉडाउन, मैक पीक 1,300। नाउ व्हाट इज योर ड्रॉडाउन, 200। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका वापस प्रॉफिट चालू होता है, एक वापस प्रॉफिट हो गया। टिल नाउ व्हाट इज योर ड्रॉडाउन, पीक क्या है, 1,300, करंट वैल्यू इज 1,200, करंट ड्रॉडाउन इज 100। ओके,
नेक्स्ट अगेन यू मेक अ प्रॉफिट, अब आपका चला जाता है, लेट्स से 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है आपका, तो आप चले जाते हो 1400 पे। अब आपका पीक इज 1400, राइट? अब आपका ड्रॉडाउन हो गया है 0, ठीक है। सो नाउ एट दिस पॉइंट, ये 15 तारीख है, लेटेस्ट से 15 तारीख है। एट दिस पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं, आज 15 तारीख है लेटेस्ट से, आपको मैं पूछूं आपका आज तक का मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर? 200, राइट? आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन आज तक जो है, आज तक आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन 200 का रहा है। ओके, लेट अस सी, इसके आगे चलते हैं। नाउ यू फ्रॉम 1400 आप चलते हो 1500 पे, अभी तक आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है? 200 है, एम आई करेक्ट? 1400 से और भी चले जाते हैं तो अभी तक हमारा 200 पे चला जाता है। Raghu ji, you can consider it as a percentage of capital, percentage of your profits, portfolio, or absolute also. ठीक है? So it's up to you. It's subjective. Okay? But general sense में मैं आपको बता दूं कितना drawdown expect कर सकते हैं and what can be considered as decent one. Okay? So now 1500 तक आप पहुंच गए. Current drawdown, maximum drawdown आपका हुआ है, that is 200 points. Am I correct in saying that? Max drawdown अभी तक, max drawdown कितना हुआ है? 200 पॉइंट का। दैट इज द मैक्सिमम रिस्क आई हैव टेकन, ठीक है। करंट ड्रॉडाउन तो 0 होगा बिकॉज मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नाउ पीक इज अगेन 1500। नाउ लेट अस से मार्केट टैंक्स और कुछ मेरे अगेंस्ट चला जाता है। नाउ सडनली आई गो टू 1000, ठीक है। अब मेरा पीक है 1500 और मैं अभी करंटली मुझे बड़ा लॉस हो गया लेट अस से, और मैं चला गया 1000 पे। ओके, सो नाउ व्हाट इज माय करंट ड्रॉडाउन? 500, विच इज पीक माइनस करंट वैल्यू। ओके, अब इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होगा? 500, ठीक है। सो दैट बिकम्स योर मैक्स ड्रॉडाउन। मतलब क्या है? एट एनी गिवन पॉइंट आपको कितना लॉस आपने झेला हुआ है फ्रॉम योर पीक वैल्यू, ठीक है। सो नाउ देर आर पर्टिकुलर क्राइटेरियाज एंड नंबर्स टू एनालाइज दिस एंड से कि बॉस कितना आप झेल सकते हो, ठीक है। कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मतलब बेसिकली am I correct in saying कि maximum drawdown is nothing but your risk that you take? Are we correct in saying that कि maximum drawdown is nothing but the risk that you take overall whenever you trade, ठीक है, कि उससे ज्यादा अगर मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो नाउ जनरली मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप किस तरीके से पकड़ते हो? एक होता है एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन, जो मैंने बोला कि 500 या व्हाटएवर एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन, दिस इज लेट अस से 500 पॉइंट्स, ओके। एक होता है परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो। दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक होता है परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो, परसेंटेज ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपका ओवरऑल कैपिटल जो था ट्रेड करने के लिए कितना था, अभी ऐसे एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन जो है दैट इज 500। सो 500 इंटू लेट्स से लॉट साइज, ठीक है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका 25,000 का आपका मैक्सिमम लॉस था, ठीक है, इनटू लॉट साइज। ओके, सो दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। देन आपका ये जो 25,000 आया था, ठीक है, आपका ये जो 25,000 रुपए का जो आपका लॉस आया था, उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या था? लेट्स से आपका जो मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन आया 500 पॉइंट्स का, ठीक है, द मैक्सिमम ड्रॉडाउन दैट यू गॉट of 500 points, when was this maximum drawdown, ठीक है। द मैक्सिमम पीक वैल्यू कितना था, पोर्टफोलियो कितना था, कहां से आपका नीचे आया है? ओके, लेट अस से आपका अगर ये 1500 से, ठीक है, 1500 से 500 पे आ चुका है, ठीक है, 1500 से 500 पे आ चुका है, तो परसेंटेज वाइज आपका 500 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। So 500 divided by 1500, that is your
परसेंटेज मैक्सिमम ड्रॉडाउन, तो ये आपका परसेंटेज वाइज मैक्सिमम ड्रॉडाउन इतना होता है, ठीक है। सो दैट इज 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ योर पोर्टफोलियो, दैट इज योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंटेज वाइज। बट आपका ये अगर 500 रुपए का अगर आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है, वो आपका आता है व्हेन योर 2500 से -500 आता है आपका, तो 2500 से आपका 2000 पे आता है, सो दैट इज योर, दैट इज अ डिफरेंट परसेंटेज। तो इट इज अप टू यू, आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। जस्ट मेक नोट्स कि आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, ओके, तो वो आप सबके लिए सेम कर रहे हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली कंपैरिजन, राइट। इफ यू वांट टू कंपेयर बिटवीन स्ट्रैटेजीज, आपको कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। सो यू कैन नॉट डू कि एक तरफ आपने एब्सोल्यूट चूज किया, दूसरी तरफ आपने परसेंटेज चूज किया, ओके। सो इफ यू आर लुकिंग एट परसेंटेज, देन परसेंटेज, सो जो भी है, इट इज, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट जनरली व्हाट आई प्रिफर इज परसेंटेज ऑफ कैपिटल, ओके। सो योर पीक वैल्यू वाज 1500 points, okay. So to trade this, your capital was, let's say, 1 lakh, ठीक है। 1 लाख के कैपिटल पे आपने ट्रेड किया 1500 रुपए से, यू वेंट टू 1000 रुपीज फ्रॉम 15, मतलब 1500 से 1000 पे चले गए, तो 500 रुपए का आपको लॉस हुआ। 500 रुपए इज योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सो लेट्स से इनटू लॉट साइज वॉट एवर यू डू, लेट्स से 25,000, राइट। सो योर maximum drawdown would be 25,000 divided by 1 lakh, which is 25%, ठीक है। So that is something that I like to consider कि मेरे कैपिटल पे कितना मेरा drawdown हो रहा है maximum, okay. And generally what I prefer is any drawdown which is less than 15%, ठीक है। Ideally तो 10% से भी नीचे होना चाहिए, but अगर थोड़े अग्रेसिव है तो परसेंटेज लेस देन 15% जो है आपका, ठीक है। आपका जो ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन परसेंटेज जो है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15% फॉर अ, इसको मैं कहूंगा अग्रेसिव ट्रेडिंग, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लेस देन इक्वल टू 15%, तो दैट विल बी स्लाइटली अग्रेसिव, ठीक है। और अगर आपको मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट जो है, जनरली एवरीवन वुड फॉल अंडर दिस, आई वुड सजेस्ट कि आप लेस देन इक्वल टू 10% पे काम करो, ठीक है। सो लेट अस से इफ यू बैक टेस्ट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, आपको यहाँ पे पता चलता है कि द मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ द स्ट्रेटजी इज 25,000, ठीक है। 25,000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है उस चीज का, ओके। तो आपको उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए रखो, तब जाके ये 10% पे आ जाएगा। दैट इज अ सेफर थिंग टू डू, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 1 लाख रुपीज, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू गो अग्रेसिव, व्हाट ड्रॉडाउन शुड यू लुक एट, कहां तक आपका ड्रॉडाउन होना चाहिए, 15,000, ओके। सो एनी स्ट्रेटजी वी बैक टेस्ट, बी इट ऑप्शंस, बाइंग, सेलिंग, कुछ भी कर लो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंडिकेटर बेस्ड, स्टॉक्स, करेंसीज, कमोडिटीज, कुछ भी कर लो। इफ यू वांट टू बी देयर फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, देन फॉलो दिस वन। आप भले ही लॉस में चले जाओ, अगर आप 2-3 साल अच्छे से इसको निकाल लेते, यू विल बी प्रॉफिटेबल बिकॉज यू हैव मैनेज्ड योर रिस्क वेरी वेरी वेल, जो शायद अभी तक आपने इतना फॉलो नहीं किया होगा। जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉलोड दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन के बेसिस पे आपने कैपिटल डिसाइड किया है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो इन डेप्थ ऑफ दिस नाउ। दिस इज काइंड ऑफ मनी मैनेजमेंट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ओके, हाउ टू डिसाइड द कैपिटल, ठीक है। ऐसे सेइंग कि नॉट फॉलोड, एनीवन एल्स जस्ट लेट अस नो, क्या ये आपको सही लग रहा है अभी तक? वुड यू बी फॉलोइंग दिस वन?
ऑनेस्टली लेट मी नो. अगर आप नहीं फॉलो करने वाले तो डोंट, आई मीन आप बता सकते हैं, बट आई वुड वांट यू टू फॉलो दिस वन. अब एक बार, ठीक है. जय जी सिंह, अच्छा फॉलो किया देन मेस्ड अप. ऑलराइट. सो आपको यहाँ पर मैं जो भी हम स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक है, हम जो भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे क्लास के अंदर भी, वी वुड बी लुकिंग एट द मैक्सिमम ड्रॉडाउन वेरी वेरी थॉरली. ठीक है. सो इफ यू लुक एट द स्ट्रैटेजी, काफी सारी स्ट्रैटेजीज हमने देखी हुई है. वी हैव आई थिंक 11-12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वंस, कम कैपिटल से ज्यादा कैपिटल तक. ठीक है. तो आप ऑनलाइन जाके भी उनको रन करा सकते हो, आपको पूरा पोर्टफोलियो बन के आप बना करा सकते हो उस चीज को. दैट इज नॉट एन इशू, बट फोकस ऑन दिस वन. ठीक है. अगर आपको कैपिटल इंटैक्ट रखना है तो. ओके. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट वेयर आई वांट यू टू फोकस ऑन, कि आपको परसेंटेज ऑफ कैपिटल रखना है. ओके. आपको परसेंटेज ऑफ कैपिटल के बेसिस पे आपको काम करना है. तो लेट अस से नाउ यू हैव 1 लाख रुपीज. ठीक है. आपको 1 लाख रुपीज आपके पास है. ओके. अब आता है मनी मैनेजमेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मनी मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. ओके. विच इज कैपिटल. ठीक है. जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है. आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है, और इसकी वजह से आपको कैपिटल की भी जरूरत होती है. अतुल जी सिंह, बैक ऑफ द कवर कैलकुलेशन विद डिफाइंड लॉस स्ट्रेटजीज एंड ऑप्शन 2 to 5%. ग्रेट. तो मतलब आप 2 to 5% पे अगर आप डिफाइंड लॉस पे काम करो, दैट इज फाइन. ठीक है. विजय जी, यस, वी विल बी व्हेनेवर वी लुक एट आवर स्ट्रेटजी, नॉट इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ. हम जैसे उस टाइम पे चले जाएंगे, वी जनरली लुक एट दो स्ट्रेटजीज फ्रॉम द थर्ड और फोर्थ क्लास ऑनवर्ड्स. तो हम स्ट्रेटजी के टाइम पे भी ये चीज बताएंगे. ओके. तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या हम करने वाले. तो मनी मैनेजमेंट में आपको सबसे पहली चीज, इफ यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ हिट्स इन द पास्ट, आपने अगर पास्ट में काफी ज्यादा हिट्स लिए हुए हैं, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, आइडियली व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप कितने कैपिटल से स्टार्ट करना है. ठीक है. हाउ मच कैपिटल टू स्टार्ट विथ. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. आई रिपीट, नॉट इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ओनली. ठीक है. मैक्सिमम कितना होना चाहिए. योर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुड बी नॉट मोर देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ लिक्विड एसिड्स. ठीक है. इट should not be more than 20% of liquid assets. ठीक है. लिक्विड एसेट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली कैश बैलेंस इन योर अकाउंट. ठीक है. लिक्विड एमएफ, जो आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हो. ठीक है. लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, वो आप यहां पर इस तरीके से पकड़ सकते हो. जनरली दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो. ओके. ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी ऑफ आवर कैपिटल. ठीक है. काफी लोगों को यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज लेट अस से पीपल, लेट्स से हैव 1 लाख रुपीज इन देयर एज कैश एसेट्स. ओके. बट कैश बैलेंस उनका 1 लाख रुपए है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग 70 to 80,000 रुपीज इन द मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है. मतलब दे आर हाईली लेवरेज्ड. मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग अगर आप बात करें, ट्रेडिंग में इन जनरल ही आपको लेवरेज मिलता है. ओके. सो पीपल आर हाईली लेवरेज्ड. ओके. सो नाउ इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इवन इफ योर स्ट्रैटेजी इज गुड, ठीक है, भले ही आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज नॉट मोर देन 5%. ठीक है. इट इज वेरी वेरी सेफ स्ट्रैटेजी. बट लेट अस से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मार्केट में, इफ देयर इज अ ग्लिच. ठीक है. विच कैन हैपन. एक्सचेंज पे ही अगर ग्लिच होगा, आई थिंक 2019 या 2020 में देयर वाज अ ग्लिच ऑन एनएसई. तो प्राइसेस वर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सचेंज इटसेल्फ. ब्रोकर का तो अलग बात है. फिनवेशिया में भी अभी ग्लिच हुआ था. लेट अस से इन दैट काइंड ऑफ अ ग्लिच यू लूज योर फंड्स. ठीक है.
तो आप सीधा सीधा 70 to 80% of your capital, of your actual money, actual assets are gone, wiped out. Okay, and that can be very very huge loss for people, and that is the most important reason why लोगों को लॉस हो जाता है और वापस मार्केट में आते नहीं है. Getting a loss is not bad. ठीक है, going into losses, losing money in the stock market is not bad. The only thing is losing your asset is a very very difficult thing to digest. ठीक है, शिवानी जी, yes, gold bees, nifty bees can be counted, but आपको अगर लॉन्ग टर्म का सोचना है तो मैं ये बता रहा हूँ, दिस कैन बी काउंटेड. बट लेट अस से इफ यू वांट टू ट्रेड विथ, ठीक है, इफ यू वांट टू ट्रेड विथ 2 लाख रुपीज एज कैपिटल, ठीक है, आपको ट्रेडिंग में 2 लाख रुपए डालने हैं. जस्ट मेक श्योर, ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट, चलो 8 to 10 लाख रुपीज एज योर लिक्विड फंड्स. भले आपके कैश बैलेंस आप उतना नहीं रख रहे, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपके पास एटलीस्ट ये दिस शुड नॉट बी द, कहने की बात ये है कि द इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में जो आप कैपिटल यूज कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी अ ह्यूज चंक ऑफ योर लिक्विड एसेट्स, बिकॉज एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. ठीक है, चाहे आप एल्गो कर रहे हो, मैन्युअली कर रहे हो, लेट अस से व्हाइल प्लेसिंग ऑर्डर्स, इफ यू आर डूइंग इट मैन्युअली इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 शेयर, आपका कुछ गलत हो जाता है, 100 या 1000 शेयर हो जाते हैं, व्हाटएवर. ओके, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इफ इवन इफ द स्ट्रेटजी इज गुड. ठीक है, सो बेस्ट थिंग टू डू इज आपको मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना है यहाँ पर. तो 20% दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो. ओके, तो अगर आप, काफी लोग जो है 15,000 के साथ काम कर रहे हैं, 15,000 20,000 के साथ काम कर रहे हैं इन ऑप्शंस या व्हाटएवर. ओके, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव इनफ लिक्विड एसेट्स इन योर अकाउंट, सो दैट अगर वो कल को 15 के 15,000 आपके जीरो भी हो गए, ठीक है, देयर शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, देयर शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है, कल को अगर एक आध महीने में आप वापस 15,000 डालने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ओके, कि एक आध महीने में वापस आप उसको रिप्लेनिश कर पाओ. ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दैट पार्ट? थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेट्स से 20% का 20-25% या 15% जो भी है, एंड दिस इज ओनली ट्रेडिंग एंड दिस इज द मैक्सिमम दैट आई वुड से. डोंट गो बियॉन्ड दिस, बिकॉज इसके अलावा आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे. ठीक है, योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, दिस इज ओनली ट्रेडिंग पार्ट. ठीक है, तो आइडियली तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग का आप 10% रख सकते हो, एंड रेस्ट लॉन्ग टर्म का अगर आपको दूसरा रखना है तो कर सकते हो. तो दिस इज द मैक्सिमम दैट आई एम टेलिंग यू. और मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डाइजेस्ट इट. ठीक है, बट काफी लोग वहां पे गलती कर देते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर्स, या फिर अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में, लेट अस से इवन इफ यू प्लेस अ स्टॉप लॉस, इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, इफ यू प्लेस अ स्टॉप लॉस एंड लेट्स से इट डज नॉट गेट हिट, कुछ ना कुछ वो ऑप्शन, वो स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है, देयर इज अ फ्रीक ट्रेड, नो नथिंग कैन सेव यू इफ देयर इज अ फ्रीक ट्रेड एंड यू गेट कॉट इन इट. ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे पहले SLM ऑर्डर्स होते थे, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स होते थे, राइट, and because of those stop loss market orders, there were a lot of freak trades. So what did the exchange do? They stopped SLM orders on options पे SLM orders नहीं लगा सकते. But the people who lost during that time, okay, जिनको वहां पर नुकसान हुआ, वो उनका तो कुछ अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, right? Those who lost money at that time, they are gone, right? They are out of the market. Okay, so your stop loss was at 100 rupees and it got hit at 800 rupees. Imagine if you're an option seller, your stop loss, I was one of them. Okay, my stop loss was at 100 rupees, 102 approximately. It got hit at 170. I was there, 170 पे मेरा hit हुआ, and the high that option made was 800. तो किसी का 800 rupees पे भी hit हुआ था. Okay, anyone who was caught in that scenario? Because I was one of them, but luckily मैंने उस तरीके से ये रखा हुआ था कि that was not a very very big problem. जो मुझे लॉस होना चाहिए था उससे डबल ट्रिपल हो गया, बट स्टिल it was I mean manageable,
राइट? सो दैट वाज अ ग्लिच. नो एल्गो कैन सेव यू फ्रॉम दैट, बिकॉज उसके बाद से एक्सचेंज ने ही बंद कर दिया. ओके, सो अगर हम इस तरीके से रखते हैं, आई एम स्टिल देयर इन द मार्केट आफ्टर दैट लॉस ऑल्सो, आई एम स्टिल देयर इन द मार्केट डूइंग वेल, है ना? तो हमको उसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर कुछ गलत भी हो जाता है एज अ बिजनेस, ही हमको उसी तरीके से लॉन्ग टर्म में देखना है ना एज अ बिजनेस, दैट अगर कुछ गलत हो जाता है वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ एसेट्स टू यूज इट. ओके, सो नाउ लेट अस से आई हैव 2 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट. ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं इन माय बैंक अकाउंट, वॉट एवर, सब कुछ पकड़ के मेरे 10-12 लाख का मेरा है पोर्टफोलियो, आई मीन इन्वेस्टमेंट, जो मैं लिक्विडेट कर सकता हूँ इन केस रिक्वायर्ड. सो आई एम ओनली इन्वेस्टिंग 2 लाख आउट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, तो अगर मैं 2 लाख रुपए यहाँ पर लगा रहा हूँ, सो नाउ हाउ टू बाइफरकेट दिस पार्ट. ठीक है, 2 लाख रुपए अगर मैं लगा रहा हूँ, सो व्हाट वी जनरली डू इज डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, स्ट्रैटेजी 1 एंड स्ट्रैटेजी 2. ठीक है, इवन इफ योर कैपिटल इज लो, अगर आप 50,000 से भी कर रहे हो, ठीक है, आइडियली आई वुड से कि काफी कम कैपिटल होता है तो उसमें मत करो, बट अगर आप 50,000 से भी काम कर रहे हो तो आपको उसको एटलीस्ट 2 चीजों में डिवाइड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड स्ट्रैटेजीज, अगर नहीं मिलती है तो यू हैव नो चॉइस बट टू स्टिक विद वन स्ट्रैटेजी. बट व्हाट वी बिलीव, व्हाट आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव, एक सिंगल स्ट्रैटेजी को वेरी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बट अ पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज इज व्हाट विल मेक यू मनी इन द लॉन्ग टर्म. ओके, तो मतलब जब एक स्ट्रैटेजी पैसा लूज करती है, यू शुड हैव सम अदर स्ट्रैटेजी विच विल मेक मनी फॉर दैट. अब मेरी अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. ठीक है, सो नाउ उसमें से अगर मैं 2 स्ट्रैटेजीज की बात करूं, सो वन इज ORB, वी विल बी लुकिंग एट ऑल दीज ड्यूरिंग आवर कोर्स. ओके, सो वन इज ORB एंड वन इज स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल. ठीक है, फॉर द लास्ट 2 months, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल हैज बीन लूजिंग. ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल मार्केट बहुत चॉपी है. शॉर्ट स्ट्रैडल ने मतलब थोड़ा ऊपर जाके मेरी जो स्ट्रैटेजी है इट इज बीन लूजिंग. ओके, बट ड्यूरिंग दैट सेम पॉइंट माय ORB इज मेकिंग मनी व्हेन दिस इज लूजिंग. एंड थोड़ा टाइम आएगा व्हेन द ऑपोजिट विल आल्सो हैपन, ये पैसा कमाना चालू कर देगा तब ये पैसा बनाना चालू कर देगा. ओके, सो ऐसा नहीं है कि माय एवरी ट्रेड इज प्रॉफिटेबल. ठीक है, अगेन 65% के आसपास का वहां पर प्रोबेबिलिटी निकलता है, 65%, 65 to 70% के बीच में इट इज प्रॉफिटेबल. बट ओवरऑल अगर मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे बात करूं, सो जनरली अगर लॉस में भी जाता है तो इट इज नॉट मोर देन 2%. ठीक है, अगर प्रॉफिट में जाता है तो ऑन एन एवरेज 3 to 5% का रिटर्न निकल जाता है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, तो यही चीज मैं आपको भी बताता हूँ. कोई भी स्ट्रैटेजी करो, एनी स्ट्रैटेजी, दैट इज अप टू यू. ओके, I'll try to give strategies from my end also. We've discussed a lot of strategies, सारी हमारी अवेलेबल है ग्रुप के ऊपर. ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है? स्ट्रैटेजी 1 एंड स्ट्रैटेजी 2 में डिप्लॉय कर देना है एंड यू हैव टू बैक टेस्ट दी स्ट्रैटेजीज, बोथ ऑफ देम. ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यहां पर आपने डिप्लॉय कर दिया 1 लाख, यहां पर आपने डिप्लॉय कर दिया 1 लाख. ओके, बट बिफोर डिप्लॉइंग आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी 1 आपने चूज करी. ठीक है, स्ट्रैटेजी 1 में सबसे पहले आपको उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखना है. ठीक है, अब लेट अस से आई हैव चोजन, ठीक है, मैंने चूज किया है कि मैं इसमें 1 लाख रुपए डालना चाहूंगा. देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ड्रॉडाउन नंबर फॉर अस? 1 लाख रुपए मैं डालना चाहता हूँ इस स्ट्रैटेजी में, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन का थ्रेशोल्ड हमने जो रखा है
कहां तक हम देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन? लेट मी नो। अप्रोक्सीमेटली 15%। ठीक है, अगर आप अग्रेसिव जा रहे हो, लोअर कैपिटल होगा तो यू हैव टू बी अग्रेसिव टू मेक मनी। ठीक है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज टैक्सेस वो सब भी काटना है, यू हैव टू बी अग्रेसिव इफ योर कैपिटल इज लो। ओके, सो लेट्स से मैं 15% का मैं थ्रेशोल्ड रख रहा हूँ इफ माई स्ट्रेटेजी हैज अ 15% ड्रॉडाउन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहां पर अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैक्सिमम ड्रॉडाउन फॉर माई स्ट्रेटेजी इज 15% एंड माई overall what is the minimum margin required for that strategy? It is very very important. ठीक है, minimum margin required to trade that strategy. okay, उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है? लेट्स से दिस ओआरबी स्ट्रेटेजी जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, ये जो ओआरबी स्ट्रेटेजी है, द मैक्स ड्रॉडाउन फॉर दैट स्ट्रेटेजी इज 12.5%। ठीक है, ये जो ओआरबी है, मैक्स ड्रॉडाउन इज 12.5% एंड मिनिमम मार्जिन, ठीक है, मिनिमम मार्जिन इज अप्रोक्सीमेटली 60,000 फॉर वन लॉट। मिनिमम मार्जिन इज 60,000 फॉर वन लॉट। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 60,000 के साथ आपका सिर्फ 60,000 कैपिटल इसमें लगेगा। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, हम वापस लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वी कीप, what is the capital that you should keep for that particular strategy is minimum margin. Those who want to make notes can make notes right now. Minimum margin plus 2 into max drawdown. आप चाहे बाकी कुछ सीखो ना सीखो, ये एक बार आप प्लीज अपने ट्रेडिंग में लगा दो। ओके, बाकी कुछ लगाओ ना लगाओ, मे बी स्ट्रेटेजी फ्रॉम दिस कोर्स इफ यू डू नॉट गेट एनी अदर वैल्यू, प्लीज ये चीज आप लगा लो। वॉट एवर यू डू, कितना कैपिटल आपको रखना है, विच इज लेट्स से यहाँ पे 60,000 प्लस 2 into 12.5 मतलब 25,000. So even if the minimum margin requirement is 60,000, I will keep at least 85,000 for this particular strategy. ठीक है, और आइडियली तो मुझे 1 लाख उससे ज्यादा का रखना चाहिए, तो 1 लाख। ठीक है, तो ये मैं आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। व्हाई आर वी डूइंग दैट? ठीक है, काफी लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेटर से इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 होता। काफी लोग क्या करते थे, आई हैव 1 लाख रुपीज इन माई अकाउंट फॉर दिस, आई विल डू 2 लॉट्स ऑफ दीज। मैं 2 लॉट कर लूंगा ना 50,000 में, 1 लाख रुपए में 2 लॉट कर लूंगा 50-50 के। ओके, बट दे डू नॉट कंसिडर द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। व्हाई आर वी कंसिडरिंग द मैक्सिमम ड्रॉडाउन? कि अगर मैंने 60,000 से स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है, अगर मैंने 60,000 से स्टार्ट कर लिया एंड लेट्स से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, दैट वाज द वर्स्ट टाइम टू एंटर इनटू दैट स्ट्रैटेजी, लेट अस से, एंड जो भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन आना था वो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तब से ही आना स्टार्ट हुआ। as soon as I enter into the strategy, I start losing money because I start going into a drawdown phase. Okay, so from 60,000 I lose the first trade. पहला ट्रेड में लूज कर देता हूं, I am down by let us say 2,000, I am at 58,000. Can I take the next trade? No, because minimum margin requirement is 60,000. Again you will have to pump in funds, बट आप पंप नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास जितना था उतना आपने लगा दिया, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग 2 लॉट्स और वट एवर आपने जो लगा दिया था आपने लगा दिया उसमें। आइदर यू विल हैव टू डिपॉजिट फंड्स फ्रॉम देयर समवेयर, अगर आपके पास है तो आप डालो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड दिस जब तक आप वापस फंड नहीं डालते। ओके, आफ्टर दैट अगर भले आपने ट्रेड कर लिया, who will incorporate slippage and taxes and brokerage और slippage कौन पकड़ेगा उसके अंदर, राइट? सो इसीलिए हमने क्या रखा है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको अपने मार्जिन में ही ऐड करना है, सो दैट कल को अगर 85,000 से मैं काम कर रहा हूँ, कल को अगर मेरा लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम 12,500 अगर मैं नीचे चला जाता हूँ, इवन देन आई हैव इनफ कैपिटल टू ट्रेड। ओके, और ये सब हटा के मैक्सिमम 2 into मैक्स ड्रॉडाउन क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज 1 into मैक्स ड्रॉडाउन विल टेक केयर ऑफ द ड्रॉडाउन
and the next part will take care of your brokerage and slippage. Are we clear with this? The formula is minimum margin plus 2 into max drawdown. ठीक है? That is a formula for, I mean, relatively safety of your capital. अगर आप जितना अग्रेसिव जाना चाहते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 into max drawdown आप 1 into max drawdown भी कर सकते हैं. Are we clear on this part? तो this can be applicable to any kind of strategy. जरूरी नहीं आप algo कर रहे हो, manual कर रहे हो, कहीं भी आपको करना है. तो 1 lakh कैपिटल अगर आपका है, 1 lakh अगर आप कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, तो उसके अंदर आप जनरली एक ही लॉट करने की कोशिश करो. ओके, सो योर मैक्स ड्रॉडाउन शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑन 1 lakh कैपिटल. ओके, यहाँ पर भी 15% ऑन 1 lakh कैपिटल. तो अगर आपको वो रिस्की लग रहा है तो आप यहाँ पे 15 इस स्ट्रैटेजी पे कैपिटल बढ़ा दो. ओके, सो दिस इज द बेसिक मनी मैनेजमेंट रूल दैट आई वुड वांट यू टू फॉलो, कि आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन जितना कर सकते हैं उतना करिए. ओके, सेकेंड रूल दैट आई लाइक यू टू टेल इज, if your capital is less than 1 lakh rupees, go ahead with zero brokerage. ठीक है, अगर आप भले ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेस देन 1 लाख रुपीस का अगर आपका कैपिटल है तो गो अहेड विद जीरो ब्रोकरेज. अभी हमारे इसमें हमने फिनवेशा यूज किया हुआ है. I don't know, soon we'll go ahead with, let us say, Kotak Neo, but अभी के लिए फिनवेशा हमने डाला हुआ है. So if your capital is less than 1 lakh rupees, do not go ahead with Zerodha in the first place. First of all, क्यों हम कर रहे हैं? Zerodha, Alice Blue, Fires, कोई भी ब्रोकर के साथ जिनका डिस्काउंट ब्रोकरेज है उस पे तो आपको जाना ही नहीं है डिस्काउंट ब्रोकर में. ठीक है, पर ऑर्डर के बेसिस पे जहां पर है. योगेश जी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी इफ दे आर गिविंग जीरो ब्रोकरेज इट इज फाइन. इफ योर कैपिटल इज लेस देन 1 लाख, से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप जीरो ब्रोकरेज में ही स्टार्ट करो. ओके, व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज करंटली मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, जो काफी सारी जो स्ट्रैटेजीज आती हैं, वहां पे 2-3 ऑर्डर, अगर आपके 4 ऑर्डर अगर दिन के निकल गए, ठीक है, सो ओवरऑल 20 रुपीज पर ऑर्डर होता है. जीरोधा में एंड एंजल और एनीवेयर 20 रुपीज पर ऑर्डर, 15 रुपीज पर ऑर्डर होता है. ओके, सो ये आपके एक ऑर्डर चला जाएगा बाइंग का एंड देन स्क्वायर ऑफ करने के लिए, तो आपको 40 रुपीज पर ट्रेड आपको लगता है. ओके, सो 40 रुपीज पर ट्रेड अगर आपको लग रहा है, एंड लेट से दिन में आप चाहे इंडिकेटर बेस्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिन में आप 2 या 3 तो ट्रेड कर ही लेते हो, राइट? तो आपको दिन का 100-150 से 200 रुपए, अभी प्लस टैक्सेस पकड़ के 150 से 200 रुपए का तो ऐसे ही खर्चा निकल जाता है. दैट इज योर ट्रेडिंग कॉस्ट, 150 to 200, राइट? सो 150 to 200 के ऊपर अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, 150 to 200 के ऊपर अगर आपको पैसा कमाना है, तो यू हैव टू मेक एटलीस्ट 500 रुपीज पर ट्रेड मिनिमम, है ना? तब जाके आपके हाथ में कुछ 150-200 रुपए. ये तो मैंने सिर्फ ब्रोकरेज टैक्सेस का हटाया है. वी हैवंट डिडक्टेड स्लिपेज फ्रॉम दिस. स्लिपेज तो हमने डिडक्ट किया ही नहीं है, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे एक्चुअली अगर हम बात करें, सो बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन ओनली वन लॉट, so it is not actually 20 rupees per order, it is 20 rupees per lot, which is very very high. Okay, so ये भी 15 rupees per lot है, which is very very high. Okay, तो यहीं पर वो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, जैसे Zerodha and all. They don't make any money from the people who have lots of capital. जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो उनसे पैसा नहीं बनाते हैं. वो जो छोटे ट्रेडर हैं हमारे जैसे,
उनसे ही पैसा बनाते हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। यही हमारा एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है कि वी आर नॉट मेकिंग दैट मच मनी पर ट्रेड। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, अगर मैं बात करूं ऑन अ 1 लाख कैपिटल, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज, ठीक है, आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज, ओके, गिव अप्रोक्सीमेटली 4% रिटर्न कंसिस्टेंटली। 4 to 5% आप पकड़ के चलो ऑन योर कैपिटल। कभी कभी अगर अच्छा रहा तो यू कैन ऑल्सो गेट 10%, बट जनरली 4 to 5%, ठीक है, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो वो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। समटाइम्स इट विल एक्सीड, समटाइम्स इट विल नॉट एक्सीड, ठीक है। तो 5% का आप पकड़ के चलो, एक्सपेक्टेशन आप 5% का लेके चल रहे हो, या फिर 7% भी आपका आ सकता है। फिर कैपिटल इज लो, अगर आप एग्रेसिव जा रहे हो तो 6 to 7% पर मंथ आप पकड़ सकते हो, ओके। सो 6 to 7% पर मंथ मतलब कितना हो जाता है, 6 से 7 हजार, 6 हजार रुपए आपका ओवरऑल रिटर्न आपका आ रहा है। दैट इज बैक टेस्टेड, ओके, बैक टेस्टिंग रिटर्न है ये, बैक टेस्टिंग रिटर्न है, ठीक है। उसमें से अगर आपने 200 रुपए पर ट्रेड अगर आपने निकाल लिया, 20 दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 20 days यू आर डूइंग, सो आपके सीधा सीधा 4 हजार रुपए तो ऐसे ही निकल जाते हैं महीने के, राइट। सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2000 रुपीज, विच इज 2% रिटर्न, ओके। दैट इज द रीजन वाई वी से कि अगर आपका कैपिटल लो है तो आपको इसमें काम नहीं करना है। सो लेट अस से इफ यू डू द सेम विद 2 lots, इफ योर कैपिटल इज हायर, तो आप 2 lots में काम कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज आपका खर्चा जो है वो 4 हजार का ही है, बट आपका इनकम जो है वो डबल हो जाता है, राइट। सो नाउ इंस्टेड ऑफ 2000 आपका यहाँ पे 8000 बचता है, राइट। सो इस तरीके से हमको यहाँ पर काम करना है। इफ योर कैपिटल इज लेस देन 1 lakh, ट्राई टू गो अहेड विद जीरो ब्रोकरेज, ठीक है। एक दिन में अकाउंट भी ओपन हो जाता है, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। जैसे आपका कैपिटल बढ़ जाता है यू कैन स्विच टू अदर ब्रोकर्स ऑल्सो, और जीरो ब्रोकरेज में भी आप काम कर ही सकते हो बड़े कैपिटल के साथ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ योर कैपिटल इज लो, डोंट गो अहेड विद दोज ब्रोकर्स। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? जय सिंह सर, 2000 भी निकल जाएंगे एसटीटी में। यस, वो भी निकल जाता है, तो वो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, और उसी वजह से काफी लोगों का ये होता है कि जैसे कि बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट है, लाइव में प्रॉफिट नहीं है। वन ऑफ द रीजंस इज दिस आल्सो, बिकॉज हमने बैक टेस्टिंग के अंदर ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं की है। तो इफ यू डू दैट, यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन एंड वेरी रियलिस्टिक रिटर्न आप वहां पर निकाल सकते हो, ओके। सो अब टेस्टिंग जैसे अगर स्पेशली अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, don't do it with any this kind of a broker, okay. Yogesh ji is asking generally what percentage brokerage slippage plus other costs. Generally in back testing you can expect 1% per trade आप पकड़ के चलो, 1% आप निकाल देते हो तो उसके अंदर सब कुछ निकल जाएगा। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स ऑल्सो जहाँ पे 0.3 0.5% का जनरली पकड़ते हैं, अगर आपने 1 to 1.5% अगर आपने पकड़ा है तो दैट विल बी अ वेरी रियलिस्टिक रिटर्न दैट यू कैन एक्सपेक्ट। 1% पकड़ के चलो, इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन बैक टेस्टिंग कर रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो तो, ओके। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले एलिस ब्लू में कर रहा था, एक अगेन अगर मैं एलिस ब्लू में कर रहा था, ठीक है, आई एम स्टिल डूइंग दैट, ओके। सो एलिस ब्लू में आई हैड 2 different strategies, ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज में कर रहा था मैं, ओके। इन वन स्ट्रेटेजी आई हैड, ईच स्ट्रेटेजी मेरे पास मैं 4 लेग में काम कर रहा हूँ, ठीक है। 4 लेग में ऑर्डर प्लेस किया, कितना हो जाता है 15, ठीक है। 4 लेग है, यहाँ पे 60 रुपए, यहाँ पे 60 रुपए, एक एक लॉट ही है, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 120 रुपए, ठीक है। देन आई डिड नॉट नो, देन आई एडेड वन मोर स्ट्रेटजी, तो 3 डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में 3 स्ट्रेटजी ऐड हो गई मेरी। तो यहाँ पे माय ब्रोकरेज इटसेल्फ इज 180 रुपीज, 3 स्ट्रेटजीज के, और इसको ब्रोकरेज टैक्सेस सब कुछ पकड़ के दिन का 250 रुपए, दिन का 250 रुपए का मेरा
ये बन रहा है, खर्चा बन रहा है, ठीक है। एंड आई वॉज मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 500 to 700 रुपीज पर ट्रेड। अभी मतलब लॉसेस वॉसेस हटा के पर ट्रेड का जो बनता है अप्रोक्सीमेटली उतना बनता है, ठीक है। समटाइम्स एवरेज प्रॉफिट वाज 1200 to 1500, एवरेज लॉस वाज अराउंड 900 अप्रोक्स, ठीक है। तो अब उसी तरीके से ये चल रहा था। सो नाउ टू केटर दिस व्हाट डिड आई डू, you can also take a look at this, okay। so now I took a franchisee of this, मतलब एक जो पार्टनरशिप होता है, by paying 1000 rupees for Alice Blue, for different brokers it is different, I think for Angel and all you will have to keep a 50,000 deposit or something, but अगर वो वर्थ है तो वो मतलब कर सकते हो आप, है ना, तो अच्छे ब्रोकर है। तो आई टुक अ पार्टनरशिप, ठीक है। एंड अंडर माय पार्टनरशिप मैंने अपने मतलब मैंने कंपनी के नाम पे पार्टनरशिप बना लिया, एंड आई एडेड माय अकाउंट इनसाइड दिस पार्टनरशिप। तो उससे क्या होता है, वॉट एवर ब्रोकरेज इज जनरेटेड बाय द अकाउंट 25% ओनली इज एप्लीकेबल, द रेस्ट 75% गेट्स बैक टू माई अकाउंट, बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है, वो आप वापस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो, ओके। सो एक्चुअली अगर मैं 500 रुपए का ब्रोकरेज जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी है 100 रुपए का जितना भी मैं जो ब्रोकरेज जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे 25 रुपए ही उसमें लगेगा बेस्ड ऑन, मतलब 100 रुपए का जनरेट कर रहा हूँ तो 25 रुपए उसमें लग रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, विच ब्रोकर्स, अभी जैसे आई थिंक जीरोधा ऑल्सो हैज पार्टनरशिप, आई डोंट नो, जीरोधा, एलिस ब्लू, एंजल, फायर्स का भी पार्टनर प्रोग्राम है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन दीज, अगर आप इन ब्रोकर्स पे हैं आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड एटलीस्ट फॉर अ स्टार्ट आप अपने फैमिली अकाउंट्स में कहीं पे ट्रेड कर सकते हो, वो अकाउंट्स अपने अंडर मैप करा लो, राइट। सो वॉट एवर ब्रोकरेज इज जनरेटेड यू विल गेट अ परसेंटेज आउट ऑफ इट, तो वहां पे मनी सेव्ड इज बेसिकली मनी अर्नड, राइट। तो आपका ओवरऑल अगर आप पकड़ ले 500 रुपए पर ट्रेड या 200 रुपए पर ट्रेड अगर आपका जा रहा है, महीने का 4000 रुपए आपका अगर जा रहा है, ठीक है, तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। साल का अच्छा अच्छा खासा 50,000 रुपए तो इसमें ही आपका जा रहा है, राइट। अमित जी यू हैव बीन डूइंग, दैट्स ग्रेट, ओके। अगर ये आप ऑलरेडी कर रहे हो तो दैट इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। अगर कोई नहीं कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ, इफ यू डोंट वांट टू स्विच टू जीरो ब्रोकरेज और व्हाटएवर, आप ये चीज कर सकते हो, एंड बेसिकली यू कैन सेव दैट अमाउंट एंड एड इट टू योर अकाउंट लेटर, ओके। तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, दैट इज वन थिंग दैट आई वुड वांट यू टू डू, ओके। गौरव जी इज डूइंग दिस विथ एंजल आल्सो, ग्रेट, ठीक है। सो इसी तरीके से मुझे बस आपको ये बताना था कि लेट अस बी रियलिस्टिक विद द रिटर्न्स। अब आप रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो हम रिटर्न्स जो है ऑन आवर स्ट्रैटेजीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न्स मंथली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली एवरेज इज 4%, 4 to 5%, ठीक है। 4 से 5% का रिटर्न जो है वो निकल जाता है, बट प्रोवाइडेड, ठीक है, टाइम फ्रेम जो है आपको 6 मंथ्स का मिनिमम रखना है पर स्ट्रैटेजी, ठीक है। 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम फ्रेम रखना है पर स्ट्रैटेजी, ओके। सो दैट इफ यू डू दैट देन यू कैन गेट मोर देन 40 to 50% रिटर्न। इससे ज्यादा आया तो इट्स अ बोनस, तो साल का 50% के आसपास का आ जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस, ओके। अमित जी यस आफ्टर एक्सपेंसेस, ठीक है, बट यू हैव टू डू दिस फॉर अ फ्यू मंथ्स एटलीस्ट, ओके। तो यहाँ पे 4 से 5% आपको लाने के लिए जो है सबसे पहले उसको टेस्टिंग में डालना पड़ता है, ओके। टेस्टिंग के अंदर आपको डालना पड़ता है इस चीज को। तो व्हाट इज अ होराइजन, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ठीक है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न जो मैं अभी कर भी रहा हूँ, 1 ORB,
दैट इज गोइंग टू बी रेडीमेड। अब हम चल रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर थिंग, हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक कोड है जो आपको रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, इन दिस इज अ टेम्पलेट। ठीक है, दिस इज अ टेम्पलेट वेयर यू कैन मेक चेंजेस टू दिस एंड द स्ट्रेटेजी वुड चेंज। ओके, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा पी साल्वी जी, दिस इज गोइंग टू बी ऑन कैपिटल। ओके, 2 to 5% ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, सो ये ORB जो है रेडीमेड अगर आप कर रहे हो, इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आप डाल सकते हो। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट, दैट इज प्योरली पाइथन बेस्ड। नेक्स्ट जो मैं स्ट्रैडल वाला जो बता रहा था, ठीक है, स्ट्रैडल वाला भी रेडीमेड है। ठीक है, दैट इज पाइथन बेस्ड। ओके, देन द थर्ड वन इज इंडिकेटर बेस्ड। ठीक है, यहां पर आपको एक्सेल के अंदर अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। ठीक है, यहां पर आपको एक्सेल के अंदर आपकी स्ट्रैटेजीज बना के उसके अंदर डालनी है। सो इसके अंदर व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू डू, नॉर्मल इक्विटीज के अंदर हम कर सकते हैं, वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू आर डूइंग यू कैन डू दैट फॉर इक्विटीज। ठीक है, इक्विटी, करेंसी, ठीक है, कमोडिटी, ये सारी चीजों के लिए आप वहां पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या क्या डाल सकते हैं, SL, टेक प्रॉफिट, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल अभी अभी नहीं लाया है, बट वो भी आ जाएगा। बट अभी के लिए आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। ओके, एंड थर्डली आप इसमें यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस बेस्ड ऑन सिग्नल्स ऑन स्पॉट। ठीक है, स्पॉट में बाय सिग्नल आता है बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर, लेट्स से MACD क्रॉसओवर, MACD का आपका स्ट्रैटेजी है, स्पॉट में MACD क्रॉसओवर होता है, यू डिसाइड टू बाय ATM ऑप्शन। दैट इज पॉसिबल विद दिस पर्टिकुलर टूल। ओके, एंड लास्टली वी विल बी लुकिंग एट breakout Excel. दिस इज प्राइस एक्शन बेस्ड। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं प्राइस एक्शन बेस्ड। तुषार जी, यस यू कैन कंबाइन इंडिकेटर्स। ओके, अमित जी, एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये जो स्ट्रैडल और ORB जो है, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेके आप उसको डायरेक्टली एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी आपको अगर रन करना है, एल्गो टेस्ट पे भी रन कर सकते हैं। ओके, सो द स्ट्रैटेजीज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द ड्राइव। आप डायरेक्टली वो पैरामीटर्स डाल के एल्गो टेस्ट पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एल्गो टेस्ट पे नहीं करना है तो वी ऑल्सो हैव अ मैकेनिज्म इफ यू वांट टू ट्रेड हियर। ओके, तो दोनों चीजें उसमें कर सकते हैं। तुषार जी, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल वी विल बी एडिंग इन, आई मीन फ्यूचर अपडेट्स। हम नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, तो पार्ट प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें इसमें हम डाल देंगे। ओके, पार्ट प्रॉफिट एंड ऑल, पार्शियल बुकिंग जो हम बोलते हैं उसको, पार्शियल बुकिंग, ये इसमें हम डालने वाले हैं। सो बेसिकली दीज आर 4 इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स जिसके बेसिस पे आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन कर सकते हो। ओके, देन दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। तो इसके लिए आपका जो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन होने वाला है, दैट इज पाइथन इंस्टॉलेशन, दैट इज गोइंग टू बी टुमारो। ठीक है, पाइथन इंस्टॉलेशन एंड API keys. So tomorrow's class we are going to install basic Python जो free version वाला, and then we are also going to look at how to get API keys for our brokers. Okay, Python installation करेंगे और API key भी लेके रखेंगे from our broker. ठीक है, तो हम कल ये आई थिंक गौरव जी फुल स्केड्यूल तो आपके ग्रुप का जो आइकॉन होगा, उसमें फुल डिस्क्रिप्शन आपको स्केड्यूल जो है वहां पर मिल जाएगा। रघु जी, यस, कैंडल क्लोज के बेसिस पे इट इज ऑलरेडी देयर, इंडिकेटर बेस जो है कैंडल क्लोज के बेसिस पे हम बना पा रहे हैं। ठीक है,
HDG saying with multiple strategies at a time, some legs can get squared with each other. Is there a solution to avoid it? See, the multiple strategy, if you are running multiple strategies at once, okay, तो उस केस में क्या हो रहा है कि what we have done is at our end हमने उसको अलग करके रखा है. So the strategy knows which is the leg that we have placed and सिर्फ उतना उसको ही square off कर देंगे. Okay, so that should not be a big problem because every strategy is designed that way to know which leg is done that. Okay, तुषार जी copy trade is also mentioned. तुषार जी कॉपी ट्रेड अभी जो एलिस ब्लू है उसके लिए कॉपी ट्रेडर ऐप जो है वो बन चुका है. दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन द ड्राइव. फॉर अदर ब्रोकर्स इट विल बी देयर इन द नेक्स्ट 10 days. वो आ जाएगा. शेखर जी यस पोजिशनल ट्रेड इज पोजिशनल ट्रेडिंग इज ऑल्सो देयर इन ऑल दीज जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, ये सारे जो एल्गोज हैं, ठीक है, सबके अंदर जो है पोजिशनल ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं. ORB हो, स्ट्रैडल हो, इंडिकेटर हो, ये हो, हर जगह आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस आपको जो करना पड़ेगा, जो बैक एंड में जो ऑर्डर प्लेसमेंट है उसमें MIS बाय डिफॉल्ट होगा, उसको आपको NRML करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली थिंग. वो मैं आपको बता दूंगा, उतना आप कर दोगे तो ये पोजिशनल बन जाएगा. ओके तुषार जी XTS भी मैं इसमें प्लान तो है XTS का भी करने का. यू जस्ट रीच मी आउट. XTS में आई वाज आई थिंक एक राजीव जी हैं, ही वाज आल्सो आस्किंग फॉर XTS बट थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा था. आई विल ट्राई टू गिव यू बाय इन अ फ्यू डेज, 2-3 days इफ यू आर ओके विद दैट. सो XTS का उसमें बन जाएगा. सो आई एम नॉट टीचिंग फॉर XTS बट वी हैव सम कोड्स बिकॉज आई वाज मैनेजिंग विद JM. तो मेरे पास XTS के कोड्स हैं. I can forward that. Okay. Ashutosh ji, we can, let's say we can connect on maybe Friday. तो आप एक बार मुझे उस पे कनेक्ट कर दीजिए. We can try to do that. Okay. गौरव शाह जी शेड्यूल इज नॉट देयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. मैं अविरल को कहता हूँ आज रात को ही वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो आइकॉन है उसमें शेड्यूल अपडेट कर देंगे. ठीक है. रघु जी yes we can make a strangle strategy based on price also. okay, प्राइस के बेसिस पे हम स्ट्रैंगल्स भी कर सकते हैं. ओके, ऑल्सो वन मोर अपडेट. वी आर ट्राइंग, दो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल पाइथन टुमारो. ठीक है, हम पाइथन इंस्टॉलेशन कल करने वाले हैं. ठीक है, बट ओके बट नाउ वी आर ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम पाइथन. ठीक है, we are trying to switch from Python to exe files directly. ठीक है, for this particular bootcamp ये हम एक थोड़ा सा नया चीज कर रहे हैं कि ये जो चारों जो एल्गोज हैं वो हम एक exe फाइल की मदद से हम ट्रेड कर पाएंगे. ठीक है, एक exe फाइल की मदद से, लाइक फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली exe फाइल आपको मिलेगी. आपको बस डायरेक्टली उसको डाउनलोड करना है एंड देन रन करना है. So you don't have to use Python installations and everything. Okay, but still safer side हम कल install करके रख रहे हैं. Okay, because API लेके रखेंगे and we'll install Python as well. All right, so we'll be installing Python as well as these exe files. Okay, so the benefit of these executable files is that you don't have to have Python installed in your computer in order to run these codes. Okay, तो उसका मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा and that we are going to do that. So but for these exe files currently, these exe files are available for Windows 10 and Windows 11. हमारा टेस्टिंग चल रहा है फॉर Windows 8. Windows 7 का I can't guarantee कि Windows 7 में ये चलेगा कि नहीं चलेगा अच्छे से, बट Windows 10 और Windows 11 में ये अच्छे से चल रहा है. Windows 8 में भी ये चल जाएगा. Windows 7 का थोड़ा सा डाइसी है. एंड करेंटली वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म फॉर exe फाइल्स टू रन ऑन मैक. ठीक है, सो दोज हु आर यूजिंग मैक, आपको ये पाइथन कोड्स ही रन करने पड़ेंगे. दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एनीवेज. पाइथन कोड्स आप रन कर सकते हो. तो मैक के ऊपर आप पाइथन कोड रन कर सकते हो. अगर आप विंडोज पे हैं तो यू हैव एन ऑप्शन टू रन दीज एज वेल.
ठीक है, अगर आपको पाइथन नहीं करना है। ओके, सो फॉर मैक यू विल बी यूजिंग द पाइथन इंस्टॉलेशन नॉर्मल, जो हम नॉर्मली कर रहे हैं वही आपको करना है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, सेम चीज है। ओके, लोकेश जी सिंह माय ब्रोकर इज 5%, शुड आई अपग्रेड टू द ब्रोकर? Lokesh ji, what I would suggest is if you, for learning purposes at least, if you switch to one of our brokers, let's say zero brokerage अगर आप कर लेते Finvesha में, so you can learn on those brokers and then maybe later on we can deploy for your choice of broker also, because it will be difficult for us to choose between lot of brokers, तो वो एक अच्छी चीज हो जाएगी। Salvi ji, multiple time frames. Currently, we don't have it, but I think in a few days' time, we will have multiple time frames in this particular indicator based session also. ये जो indicator based हम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर multiple time frames भी आ जाएगा, because that is difficult to code. Okay, तो multiple time frames, it is very difficult to code actually, so we'll try and do that as well. Okay, अभी normal single time frame वाला तो है. Okay, Yogesh ji, if you apply to Finvesha, I think by tomorrow evening you should be done. Okay, just make sure those who are opening new accounts for testing purposes, just make sure that your MCX is active. MCX active करा लो अगले एक आध दो दिन के अंदर, whatever broker, ठीक है, what brokers we are going to teach for. अभी जो हमारे पास जो रेडीमेड जो algos है, that is for Zerodha, ठीक है, Zerodha, Alice Blue, Fires, Angel, Finvesha, ठीक है, ICICI एंड कोटक वी हैव सम वेरी फ्यू algos, ठीक है, जो थोड़े आउटडेटेड अब हो चुके हैं. कोटक एंड ICICI, व्हाई आर वी नॉट कंसिडरिंग देम फॉर आवर in our course? Because these two brokers are not allowing us to place algo orders in MCX. ठीक है, MCX के अंदर ये algo orders जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, you can only place manual orders for now. Okay, so but because we are trading in ICICI and Kotak, ठीक है, and we are trading in I mean during the market hours of commodities, है ना, तो शाम को 7 बजे ट्रेड करें तो we want MCX, है ना, तो that is the reason कि हमने इनको अभी चूज नहीं किया है. ठीक है, we have 5 brokers that we have tied up with. तो आप टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर इनके साथ टेस्ट कर लो, देन मे बी अगर आपको NFO में करना है तो हम आपको ICICI में लगा के दे सकते हैं आफ्टर सम टाइम, पर एटलीस्ट यहाँ पे सीखने के लिए इनमें से आप ओपन कर सकते हैं. ओके, बट जस्ट मेक श्योर कि आप MCX एक्टिव रखो, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट इन द MCX आवर्स 7 to 9 हम करेंगे, तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू. ओके, यस तुषार जी, यू विल गेट द फ्यूचर वर्जन्स डेफिनेटली आफ्टर दिस कैम्प. ठीक है, प्रताप जी, डिफरेंस इज बेसिकली पाइथन को आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर आपको उसमें कोड को रन करना पड़ता है. विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल इट इज लाइक अ डबल क्लिक. ओके, सो जैसे एक ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है. ओके, ऑल आई हैव टू डू इज, इस पे ये जो एक एल्गो है उस पे मुझे अपना वन टाइम मैंने अपना API की डाल दिया. वंस आई डू दैट, मुझे बस जाके यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है. ठीक है, तो ये जैसे डबल क्लिक कर दूं ये रन हो जाता है. ठीक है, सो उस तरीके से मुझे करना है. BombayProperty.com, you're saying on Fires, where does one enable MCX? For Fires आपको MCX myaccount.fires.in पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर if you go to your profile you'll see if your MCX is active or not. If it is not there, simply you can Google it, how to enable MCX in Fires. I think myaccount.fires.in उस वेबसाइट पे जाके आप इनेबल कर सकते हैं. They'll ask for your I think बैंक स्टेटमेंट, और वैसे आप उसमें कर सकते हैं. ओके, योगेश जी, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे अगर रीच आउट कर लो तो मैं वहां पे आपको बुक्स के कुछ रेफरेंसेस दे सकता हूँ. ओके,
जय जी, व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑनेस्टली इज आप टेस्टिंग के लिए एक आध अकाउंट अगर इनमें से अभी के लिए ओपन कर लो, फिर वॉट एवर एल्गो यू फील कि ये यहाँ पे हम आगे कर सकते हैं, देन दैट आई कैन हेल्प यू आउट विथ फॉर कोटक। ओके, वरना अभी से अगर कोटक में करके दे दूंगा, फिर वॉट एवर वी टीच आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर ब्रोकर इज डिफरेंट। सी दैट इज one issue that a lot of people have faced in the past as well, कि because their broker is different and हम किसी और brokers के लिए पढ़ा रहे हैं, तो that is why they were not able to follow the course. Okay, तो आप प्लीज वो issue ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ if you can arrange for an account, because obviously we cannot teach for all the brokers, है ना, कि किसी के पास अपस्टॉक्स है, किसी के पास मोतीलाल ओसवाल है, किसी के पास 5 पैसा है, so we cannot teach for all the brokers at once, है ना। So we have seen कि जो मेरे पास भी brokers है, because if I have created an algo, so I have to test it. So ये मेरे पास जिनके पास मतलब जो अकाउंट है, वही अकाउंट के लिए मैं हेल्प करा सकता हूँ, राइट। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दोस, then later on if you decide to, definitely I can help you out with switching to your broker again. Okay, yes जय जी, आप एंजल का कर लो। आई थिंक हमारी बात हुई थी एक बार इस बारे में, आप एक बार एंजल का कर लो, then we can go ahead with that. Okay, सालवी जी, एज फार एज आई नो, ये जो भी हमने यहाँ पर लगाए हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर स्टेबल। ठीक है, जो मैंने टेस्ट किया हुआ है, जीरोधा इज मोस्ट स्टेबल। जो अगर हम बात कर सकते हैं, दैट इज जीरोधा, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो जीरोधा है, बट दैट इज पेड। अब ये उसके बाद एलिस ब्लू, फायर्स, एंजल इज ऑल्सो गुड। ओके, फिनवेशा इज फेयरली न्यू, बट ये तीन भी अच्छे हैं। अगर मेरी माने तो जीरोधा इज द बेस्ट, बट अगेन इट इज कॉस्टली। ठीक है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, महीने का 2000 चार्ज करते हैं। गुरविंदर जी, आई एम यूजिंग मल्टीपल, जैसे मेरा एलिस ब्लू में भी है, आई एम यूजिंग एलिस ब्लू, फायर्स, एंजल। ठीक है, इसके अंदर मेरे मोस्टली एंजल नहीं, सॉरी, फिनवेशिया, एलिस ब्लू, फायर्स, फिनवेशिया। जीरोधा के अंदर काफी छोटा वाला मेरा मतलब जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने रखा हुआ है, बट मैं इन तीनों में मेरे अकाउंट्स हैं, तो तीनों में मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, एलिस ब्लू, फायर्स, एंजल। ओके, सालवी जी, यस, फायर्स इज ऑल्सो गुड, फायर्स इज गुड। ओके, फायर्स में बट इतना ही है कि यहाँ पर आपको 20 रुपीज होता है, एंजल में भी 20 रुपीज होता है पर ऑर्डर, एलिस ब्लू में मुझे 15 रुपए है पर ऑर्डर। ओके, और यहाँ पे जो आप पार्टनरशिप लेके यू कैन डू इट दैट वे। ओके, चंद्रशेखर जी, पार्टनरिंग कॉस्ट इज वन टाइम, आई गेस लास्ट टाइम मैंने किया था, इट वाज वन टाइम ओनली, 1000 रुपए वन टाइम होता है, एंड द शेयरिंग इज ऑल्सो गुड, दैट मेक सेंस, है ना। Nachikeet ji saying, what is the max slack time in executing trades from algo using Python? See, lag time is approximately less than a second on an average. Overall algo का आपका within a second all the orders would be punched. Okay. तो lag time तो बहुत कम होता है, depending upon the strategy also how we try to look at it. तो आप 1 सेकेंड से कम का ही पकड़ के चलो। Edelweiss 814, I don't know your name sir, but Edelweiss we will try Nuvama में। अभी तक तो हमने ऐड नहीं किया है, बट जनरली हाउ वी ऐड इज कम्युनिटी में जहाँ जहाँ पे ज्यादा अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे हम ऐड करने की सोचते हैं। सो वी विल बी लुकिंग एट Nuvama, बट मोस्टली दैट्स 1 मंथ अहेड। तो एक डेढ़ महीने के बाद हम नए ब्रोकर ऐड करेंगे। तो जनरली वी ऐड 1 न्यू ब्रोकर एवरी मंथ, राइट। सो जीरोधा हमने वेरी रिसेंटली वी हैव एडेड जीरोधा। ठीक है, जीरोधा हमने बहुत रिसेंटली ऐड किया हुआ है। सो दिस मंथ विल नॉट बी एडिंग एनी मोर ब्रोकर्स। तो हम जो नया ब्रोकर जो ऐड करना होगा वो हम नेक्स्ट मंथ में ब्रोकर ऐड करेंगे। इन दिस मंथ वी नीड टू ऐड सम मोर एल्गोस फॉर द एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स। ठीक है, बिकॉज एक ब्रोकर ऐड करने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, बिकॉज वी आर
नॉट जस्ट एडिंग द ब्रोकर, वी आर एडिंग ऑल द एल्गोरिदम्स फॉर द ब्रोकर, है ना। तो ये चारों एल्गोस ब्रोकर के लिए बनाना, उसमें टाइम लगता है। सो इसमें फिनवेशा ऐड कर दो। सो वी आर फोकसिंग दिस मंथ ऑन एडिंग न्यू कैपेबिलिटीज, ठीक है। संजीव जी अपस्टॉक्स तो नहीं, IIFL में आई कैन हेल्प यू आउट विद XTS में आपको हेल्प कर सकता हूँ। अपस्टॉक्स तो इट इज नॉट इन आवर रीसेंट आई मीन अपडेट्स, because not a lot of people are using upstocks in the community right now. So but IIFL XTS मेरे पास ऑलरेडी है, XTS में आपको हेल्प कर सकता हूँ, okay? Utkarsh ji saying, can I run two strategy in two different accounts? Yes, definitely you can run. Definitely you can run. Okay. So मैं भी वही करता हूँ, आप कर सकते हैं उसके अंदर। ओके। शुभेंदु जी सिंह सर, आजकल फ्री में अकाउंट ओपन होती है, इसमें क्या पूछना है और एक खोल दो, क्या क्वेश्चन है यार। शुभेंदु, या आई मीन एक और ओपन कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि ज्यादा अकाउंट का भी एक थोड़ा आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। अकाउंट मैनेज AMC एंड सो फोर्थ, ये अगर हो सकता है, बट स्टिल व्हाट आई सजेस्ट इज टेस्टिंग के लिए अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर लो। देन इफ यू डिसाइड कि अब हाँ मुझे ये एल्गो कर हो चुका है, अब मुझे टेस्टिंग हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है, नाउ आई वांट टू गेट स्टार्टेड, देन वी कैन गो अहेड विथ व्हाटएवर चॉइस ऑफ ब्रोकर यू वांट। तो आप ये वाला अकाउंट बंद करा सकते, ओके। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप अपने ब्रोकर्स के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो डिफिकल्ट पड़ेगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू टीच फॉर दैट, ओके। तो फिर आप बाकी क्लास से अलग हो जाओगे, है ना, तो वो एक काफी डिफिकल्टी काफी लोगों ने फेस की है। सो आप ना करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इवन इफ यू डोंट ओपन एन अकाउंट, अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी का अकाउंट है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज यू कैन यूज दैट अकाउंट फॉर अ फ्यू डेज, देन वी कैन स्विच टू योर ब्रोकर, ओके। ये शुभेंदु जी, ये फिनवेशा टेस्टिंग के लिए तो इट इज नॉट बैड, आप छोटा कैपिटल लगा के वहां पे फिनवेशा में कर सकते हैं। यस, नम्रता जी सिंह, एंजल API इज फ्री। यस, एंजल API इज फ्री। जो भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें सिर्फ जीरोदा इज आस्किंग फॉर 2000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। जीरोदा 2000 रुपए पर मंथ मांगेगा। अपार्ट फ्रॉम देम ऑल दी अदर ब्रोकर्स आर फ्री, नॉट फ्री ब्रोकरेज, API इज फ्री, ओके। तुषार जी, बैक टेस्टिंग डेटा आई कैन गिव यू, ठीक है, बैक टेस्टिंग डेटा आई कैन गिव यू फॉर कमोडिटीज, ठीक है। उसके अंदर वी हैव एन एक्सेल शीट ऑल्सो, थोड़ी हैवी एक्सेल शीट है, ठीक है। तो वो एक्सेल शीट आप यूज कर सकते हैं, बट दैट एक्सेल शीट कैन वर्क क्वाइट वेल इन एक्सेल विच इज ग्रेटर देन एक्सेल 2016, शायद एक्सेल 2016 के ऊपर के जो वर्जन्स हैं उसमें वो अच्छे से चलता है, राइट। So that is a backtesting Excel, वो थोड़ा heavy है, I'll be explaining that to you in the class also, and we are developing a backtesting tool on our own, तो वो भी हो जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। मोहम्मद असाद जी, अपस्टॉक्स करेंटली नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ये देख लो, ये जो 5 ब्रोकर्स हैं उस पे हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। 5 ब्रोकर्स पे हम सिखाएंगे, तो उसमें आप एक बार चेक कर लो, एंड देन वी कैन स्विच टू अपस्टॉक्स एज वेल, ओके। ऑल राइट, I think quite a few queries we have taken. JSG historical data for options जो है for which, अगर historical data चाहिए आप एक बार मुझे WhatsApp कर लो, एंड कौन से ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, मोस्टली आई थिंक मैं आपको एक कोड दे दूंगा जिससे कि आप खुद भी उसको रन करके हिस्टोरिकल डेटा ले सकते हो ना, तो आपके ब्रोकर्स के थ्रू ही। Madhasa ji, do you have any API for auto execution of trade? मोहम्मद जशी, आई माई सेल्फ डोंट हैव API, बट वी यूज ब्रोकर्स API, तो हमने अभी तक खुद का API नहीं बनाया है, बट
आगे चल के वो भी अगर हम कर सकते हैं कि खुद का ही एपीआई बना के दैट यू कैन लिंक टू एनी अदर ब्रोकर इफ यू वांट, सो दैट वी कैन डू. Anshul ji is asking, will we get backtesting code? Like, what is the max drawdown? If yes, in what language? Anshul ji, we will get the backtesting code. It will not be a code. It will be an executable file. आपको एक executable file मिलेगी जिसमें हम we are trying to create a good front end for that right now. तो जैसे वो बन जाता है, you will be able to see. तो आपको maximum drawdown ये सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी. तो बीटा phases हैं. We are trying to create a lot of new things at once. तो थोड़ा एक एक करके हम डालेंगे एंड आई वुड वांट योर फीडबैक फ्रॉम दैट आल्सो. तो उस तरीके से हम चलेंगे. अंशुल जी, यस वी मतलब पाइथन के ही अंदर करेंगे तो वी यू कैन हैव दैट कोड. आई कैन शेयर यू दैट कोड एज वेल. ओके, कोड भी हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू. ओके, so I'll be sharing that code, but let us first create that back testing engine. तो उसके अंदर क्या है, basically we are trying to create intraday backtesting engine so that you can get data and backtest there. Okay, so वो भी आएगा कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद आएगा, mostly by while the second week of our bootcamp starts. Okay, so कल के लिए I think for now we can stop here. All right. I hope that was some good information that you got from this particular class कि आपको money management में क्या percentage रखने हैं. Okay. So I hope you have made notes from that. और वही चीज जो है हम आगे चल के फॉलो करने वाले हैं. भले ही आप ये जो एल्गोस हैं उनको यूज करो, और यू कैन ओनली डायरेक्टली गेट द स्ट्रैटेजीज, स्टार्ट डूइंग इट ऑनलाइन आल्सो. ठीक है, बट जस्ट मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दो. इट इज वर्किंग, दीज स्ट्रैटेजीज आर आल्सो वर्किंग. तो उस पे ध्यान देना और कीप अ लॉन्गर होराइजन है ना, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन रखो, शॉर्ट टर्म में मत रखो. ओके नचिकेत जी, यस टुडेज रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ओके, एंड एज अ रिविजन हमने आज की क्लास में क्या किया है, इफ यू वांट अ रिविजन आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ. व्हाट वी लर्नड वाज बेसिकली we've seen how trading as a business is important compared to trading just as a side income. The most important thing is going to be back testing. Okay, तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करना है, एंड बैक टेस्ट कौन से डेटा पे करना है, कितना करना है. वी ऑल्सो सॉ अ मैक्स ड्रॉडाउन. व्हाट एग्जैक्टली इज मैक्स ड्रॉडाउन? तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इफ यू वुड बी बेटर ऑफ बाय लुकिंग एट द रिकॉर्डिंग. सो वी ऑल्सो लुक्ड एट द मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है, एंड व्हाट इज अ परसेंटेज दैट यू कैन कीप. लेट्स से वी सॉ दैट इफ यू आर एन अग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है, you can have a max drawdown of approximately 15% of the capital. अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप 10% रख दो. We will be looking at multiple strategies during the classes. ठीक है, multiple strategies हम देखते रहेंगे. My thought process is after every class towards the end हम एक strategy देख सकते हैं. That is, just let me know if that sounds good. चाहे क्लास किसी भी टॉपिक पे हो, towards the end we can look at one strategy, we can try to backtest one strategy. Okay, है ना, अलग अलग strategies towards the end after we are finished with some of the Q&As. तो हम एक लास्ट में एक strategy देख के, ठीक है, तो अगर लेट अस से इफ यू वांट अगले दिन पे जाके आप चाहिए तो उसको ऑटोमेट भी करके ऑनलाइन जाके भी ट्रेड कर सकते हो. सो वो चीजें हम डेफिनेटली करेंगे. तो मोस्ट some strategies would be there from our side only. Some strategies will be looking and back testing the strategies in the market as I mean in the classes itself. Okay, so yeah, that's, if that sounds good, we can do it from the next class itself. अगली क्लास से हम कुछ नई strategies ट्राई करते हैं. Let's see if those strategies fall in our criteria. कितना कैपिटल रखना चाहिए, कैसे उसको पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए. ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं. अतुल जी, yes, we'll backtest some positional ones also. I'm inclined towards using positional strategies now. तो मैं definitely उस पे काम कर रहा हूँ. तो we'll be looking at them. Yeah. शुभेंदु जी, हम इंडिकेटर बेस्ड कर सकते हैं, कैंडल क्लोजिंग वाला भी कर सकते हैं, बट मेनी टाइम फ्रेम्स वाले के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो यू नीड टू गिव मी सम टाइम टू क्रिएट दैट मेनी टाइम फ्रेम्स वाला थिंग, बिकॉज दैट इज
quite, I mean, time consuming for us to create that multiple time frame analysis based on indicators. Okay. So, but बाकी दो चीज तो हम कर सकते हैं. मल्टीपल टाइम फ्रेम्स वाले के लिए थोड़ा अगर टाइम दे तो we'll try to create that as well. Okay. तो जैसे ही बन जाता है we'll be updating you and then you can use that. Okay. Yeah, I think Subhendu ji, now which time frame as in आप कोई भी time frame कर सकते हो but एक ही बार मतलब you can trade in 1 minute, 5 minute, 3 minute, जितने भी मिनट का आपको कैंडल बनाना है कर सकते हैं, but multiple time frames at once is slightly difficult at the moment, but हम उसके ऊपर भी बनाएंगे. Okay. Thank you so much, Shekhar ji, for that for the feedback. All right. So let's see if we can get some very good strategies in the next few days. ठीक है कि आप अपने वो strategies लेके आप आगे चल के कुछ कर पाओ और हमारे end पे भी हम जो algos बना रहे हैं आगे चल के आप उनको use कर पाओ. Okay. All right. That being said, I'll take your leave now. We can stop the recording now. Okay. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Let's meet again. Let's meet again tomorrow at the same time, 7 p.m. Okay. अगर किसी के डाउट सॉल्व नहीं हुए हैं, we can take them in the next class as well. Don't worry. Okay. Just remind me once. All right. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Bye bye. Good night. Thank you. Bye.